Distinguished guests, let's now shift gears and dive into the world of Indian cinema, which has been a significant contributor to India's soft power. With over 1 billion fans worldwide, Indian movies have become a cultural phenomenon, breaking language barriers and transcending geographical boundaries. To discuss the magic of Indian cinema and its impact on India's soft power, we have with us someone who has captivated us with her enthralling performances, infectious smile, and an endearing on-screen presence for over 3 decades, with iconic films like Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai, and My Name is Khan. No guesses there? Ladies and gentlemen, please welcome the fun and fearless, the one and only Kajol, in conversation with Kishore Ajwani. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. The stage is all yours, Kishore. Welcome to Rising Bharat, Kajol. Thank you so much. First of all, let me say good afternoon, good evening, whatever it takes. Namaste, namaskar. I'm very, very happy to be here. Thank you so much for inviting me. ये बताइए, even your mother used to go only by her first name. आप भी सिर्फ काजोल के नाम से जाने जाती हैं, जबकि इतने फेमस सरनेम्स आपके साथ जुड़ सकते थे. ये कॉन्शियस चॉइस रही है? बिल्कुल, बहुत ही कॉन्शियस चॉइस थी. मेरी माँ ने मुझे पूछा था जब मैं पिक्चरों में आना चाहती थी उस वक्त, तो मुझे पूछा था कि that you have such a amazing lineage from your grandmother's side, and you have your grandfather's side as well. और मुझे उस वक्त और अभी भी लगता है कि मुझे किसी की तरफदारी नहीं करनी थी. I wanted to be true to myself, and I did not want the baggage of lineage. तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ काजोल के नाम से ना जानी जाऊं, तो शायद इतना प्रेशर नहीं आएगा मुझ पर. आप कह रही हैं कि जब आप फिल्मों में आना चाहती थी, पर हमने तो सुना था आप फिल्मों में आना नहीं चाहती थी. बिल्कुल नहीं. मैंने हमेशा अपनी माँ को इतना काम करते हुए देखा है और इतनी तकलीफों से गुजरते हुए देखा है कि मुझे हमेशा लगा कि जितना काम करते हैं लोग इस इंडस्ट्री में उतने पैसे नहीं मिलते उनको. पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं. आई थिंक आई हैव सीन माय मदर वर्क like a maniac from 7 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon to 10 o'clock at night. तो 2 शिफ्ट काम करते थे और 10 बजे रात को मेरी माँ घर पे आती थी. and it was not a life that I ever wanted to do. मुझे हमेशा लगता था I wanted to be that one जिससे 9 to 5 जॉब हो और हर महीने में पेचेक आता है और उसके हिसाब से आप अपना महीने का बजट बनाते हैं. You wanted that kind of a life. बिल्कुल. लेकिन अब तो पेचेक आपको रोज आता है. अभी हाँ. मैंने अपने fortunately I have learned how to manage my money better. लेकिन फिर कैसे हुआ? How did it start? आप तो स्कूल में थी शायद जब आपने फिल्म साइन की. जी, मैं I was in my first year of college. तो उस वक्त मैं एक्चुअली मेरी जो कजिन थी उसे फिल्मों में आना था, तो वो उसे फोटो सेशन कराना था, तो मैं उसके साथ मेरी मामा की बेटी थी. अच्छा. तो उसे फिल्मों में आना था एंड मैं उसके साथ गई उसका हाथ पकड़ने के लिए कि डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू. मैं हूँ, I'll come with you, I'll hold your hand and we'll sit together. हम लोग साथ में बैठेंगे and don't get nervous, I'm here with you. और मैं वहां गई और मैंने तो बोला, गौतम ने बोला कि तू आ गई है तो then might as well do your pictures also. बोला अच्छा ठीक है, I mean she's doing hers, ठीक है, even I'll do mine, but I was like let's finish hers first. उसके पहले खत्म कर दो. तो उसके बाद उसके फोटोज लिए और she did get an offer for a film, I want to tell you, and she did an ad as well. Okay. But she was like, okay, this is not my scene, ये मुझे नहीं करना है.
और मुझे भी एक ऑफर मिली पिक्चर के लिए फॉर बेखुदी, और मुझे करनी थी तो मैंने कर ली, और मुझे लगा कि ये जिंदगी जो है दिस सूट्स मी। ये रियलाइजेशन कब हुआ? आप तो कह रही थी कि आप अपनी आई थिंक आई हैड सो मच फन उस वक्त, और आज तक मुझे लगता है कि वर्क वाज माय होल प्लान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज टू हैव एज मच फन एज पॉसिबल। और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, टच वुड। आई मेट मिकी कॉन्ट्रैक्टर, I met Gautam Rajadaksh, I met Rahul Uncle and Kamal Sadana and Kamal ji, who was my cinematographer at that point. So unhone, I was 16 years old. I was 15 and a half actually. So I was 15 and a half, और मुझे सबने इतना literally मुझे लगा कि मुझे पाल पोस के बड़ा किया उस 1-2 सालों में। और I had such a good time that I could not imagine, like I couldn't imagine going and sitting in an office somewhere and having as much fun or meeting as many people that I connected with or felt on, so much a part of basically my tribe, as you would call it. लेकिन वो अब आप कह रहे हैं कि लिनेज ने आपको नहीं चाहिए थी, लेकिन वो मिला तो इसी वजह से ना, लिनेज की वजह से। Probably, I would like to believe that it had something to do with my talent as well. और हमने जो शुरुआत के जो पिक्चर्स देखी थी उसमें सैफ अली खान थे साथ में जी, और फिर वो चेंज हो गया था जी। तो उससे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई? एक्चुअली मुझे फिल्मों के बारे में उस वक्त इतना पता नहीं था कि मैं डिसअपॉइंटमेंट या हैप्पीनेस फील करूं। बट यस, ऑफ कोर्स, Seth was really cool. He was a great guy to work with. And yes, I was like, okay, why are we changing him? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्यों निकाला गया था या जो भी है। निकाला गया था मतलब हाँ। उसने क्यों पिक्चर छोड़ दी? But yes, but of course again, Kamal was lovely to work with. So like I said, I was too young at that point of time to realize, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, etc. उसके बाद इतने साल गुजर गए और आप अभी तक फिल्में कर रहे हैं। अभी एक माँ फिल्म आ रही है आपकी जी, और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जो कंटेम्प्रेरीज उस टाइम की आपके साथ थी वो काफी पीछे रह गई, और आप अभी भी एक तो वैसी की वैसी लग रही हैं और वैसे का वैसा काम कर रही हैं, और वही फन जो आपने कहा वो आप अभी भी कर रही हैं। Absolutely. I would love to say that, but I would just like to clarify this, which I have said before, that I was never any part of any rat race. तो मैंने कभी जो है अपने आप को किसी नंबर के हिसाब से देखा ही नहीं। तो नंबर 1 जो होता है वो देखता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। I was never, everybody else was 1 to 10 to 100, मैं तो रेस में ही नहीं थी। तो मैं अभी तक मैं बोलती हूँ कि मैं रेस में ही नहीं हूँ। वो रेस जो है वो सब खेल रहे हैं, रेस कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन मैं तो रेस में हूँ ही नहीं। और इफ यू लुक एट माई फिल्मोग्राफी ऑल्सो, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट इट द अदर डे, एंड आई प्रोबेबली एम द लीस्ट वर्कड एक्टर इन द होल फिल्म इंडस्ट्री। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जो लोग अभी रिसेंटली आए हैं उन्होंने ज्यादा काम किया होगा मुझसे ज्यादा। आई थिंक माई फिल्मोग्राफी इज व्हाट अबाउट 50 फिल्म्स, 50-55 फिल्म्स, दैट्स इट। तो आप चूजी हैं या लेजी हैं? दोनों। बिल्कुल। I choose to be lazy. I choose to be lazy. I choose to have a slower life. I choose to enjoy my life as is along with working. I think working should be a part of my life, not apart from my life. And in every which way, I think I have found a balance to life. और जो हर चीज जो होती है, मुझे अपनी कॉफी बहुत पसंद है, सुबह की कॉफी, स्लो मॉर्निंग्स। आई लाइक माई स्लो मॉर्निंग, आई लाइक वेकिंग अप लेट, आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली। तो काम के लिए अलग बात होती है, बट सो इट्स जस्ट आई लाइक द स्मॉल थिंग्स, एंड आई लाइक माई लाइफ। जो है जिंदगी जो है वो अगर हम अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? और बच्चे नहीं कहते कि आप तो इतनी बड़ी स्टार थी
और क्यों इतना ज्यादा पीछे कर लिया आपने आपको? भाई अब मेरे बच्चे तो मुझे बोलते रहते हैं, मुझे बहुत गिल्ट देते हैं कि यू नो व्हाई डू यू हैव टू वर्क, वो अलग है, व्हाई डू यू हैव टू वर्क, व्हाई कांट यू सिट एट होम। अच्छा। और आप घर पे बैठ के बाकी माओं को देखा है, मतलब आते हैं मेरे स्कूल पे मुझे पिकअप करने के लिए, यहाँ पे आते हैं मेरे साथ, वहां पे आई वॉज लाइक थैंक यू, आई एम नॉट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई डोंट प्लान टू बी, आई एम एंजॉइंग वर्किंग and you will respect me more when you grow up. So I'm waiting for them to grow up. ये बताइए, तब की फिल्में जब से आपने स्टार्ट किया और अब जो है OTT पे भी जो कंटेंट है, उसमें आप अपने लिए क्या फर्क देखती हैं? अपने लिए बहुत फर्क देखती हूँ। मुझे लगता है कि आज के जमाने में जो एक्टर्स हैं, वी आर वेरी लकी. We are very lucky right now as actors because it's a fabulous time for actors. I think all across the globe right now, but with the OTT most especially, yes, it's a fabulous time for actors, and because we are getting a variety of roles that are not age specific. Most importantly, so it has nothing to do with any kind of measurement. आपकी उम्र का measurement नहीं है और आपके figure का measurement नहीं है उसमें. And it's wonderful because we have the choice in front of us, and you don't have to look a particular way feature wise or you know in any which way. It really has to do with your talent, and it really has to do with you know the kind of work. You can do a variety of work right now and still be called, you know, a big star. It doesn't only have to do with which songs do well of yours, or you know, if you have like a film in which you are the main lead or not. तो पहले ऐसा ये प्रेशर रहता था कि ये गाना नहीं चला फिल्म सैटरडे मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग उस रैट रेस में थे, तो जरूर ये प्रेशर था. और उस वक्त भी एक लोगों का नजरिया था हमारी तरफ, टू लुक एट एक्टर्स ऑल्सो एंड एक्टर्स लुकिंग एट देमसेल्व्स. जो एक्टर्स खुद को देखते थे वो अपने आप को सबसे ज्यादा जज करते थे, और सबसे बड़ी जजमेंट यही होती थी. और शायद हीरोज के लिए मैं कहूंगी कि अभी तक है कि बॉक्स ऑफिस में आपकी पिक्चरों में ने कितना कमाया है, एंड यू नो विच सॉन्ग हैज डन वेल, एंड डू यू हैव अ हिट सॉन्ग और नॉट दिस ईयर. एंड इट हैड नथिंग टू डू विथ whether you are a good actor, what kind of a role you had, you know, was it a fabulous role and did you get a lot of accolades, did you get a lot of praise for it? I wouldn't say accolades because that includes awards. वो पूरी अलग कहानी है altogether. लेकिन so today I feel आपके पास भी actors क्योंकि सॉरी आपने अवार्ड की बात की और ये बात बहुत लोग उस तरह से नहीं कर सकते जैसे आप कर सकती हैं. ये अवार्ड्स आपको भी ऑफर होते थे या कुछ होता था कि आप ये कर लीजिए तो अवार्ड मिल जाएगा? मैंने एक्चुअली उनको इतना यू नो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो शायद मुझे इतनी ऑफर नहीं हुए. आई थिंक मैंने हमेशा कहा था, उस वक्त भी कहा था, तो और मुझे अभी तक भी लगता है कि अवार्ड्स जो है दे आर मोमेंटरी. वो 1 मिनट होता है, 5-10 मिनट होते हैं, आप स्टेज पे जाते हो और ऐसे थैंक यू सो मच, आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, आई वांट टू थैंक माय मैंने पेपर पढ़ के यू नो पूरी लिस्ट लिखी है कि ये 200 लोग हैं जिनको मुझे थैंक करना है. एंड बट आफ्टर दैट व्हेन यू गेट ऑफ द स्टेज इट्स ओवर, इट्स डन विथ. और वो पिक्चर खत्म हो गई है, वो वक्त चला गया है, एंड नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अनदर सेट ऑफ अवार्ड्स. तो उस वक्त क्या करेंगे आप? And so I really think they are momentary. You have to satisfy yourself. और हर करियर में जो भी I think people who are truly successful have learned how to satisfy themselves rather than anybody else. तो आप पीछे मुड़ के अपनी फिल्मों पे नजर नहीं डालती, या उन फिल्मों पे जो कहा जाता है कि आप कर सकती थी आपने नहीं की और वो सक्सेसफुल हो गई? आज अभी सुबह हमारे साथ सनी देओल थे, वो गदर की बात कर रहे थे और उसमें आप भी तो हो सकती थी. आपको ऑफर हुई थी ऐसा हमने सुना? नहीं, गदर मुझे ऑफर नहीं हुई थी. इट वाज अ रूमर. लॉट ऑफ फिल्म्स वर ऑफर्ड टू मी. आई विल से दैट लॉट ऑफ फिल्म्स. मैं ये बोलूंगी नहीं क्योंकि वो आई थिंक वो पिक्चरें ऑलरेडी बन चुकी हैं, कुछ हिट हो चुकी हैं, कुछ नहीं बन चुकी हैं, तो मैं वो कहूंगी. बट आई थिंक इट्स यू नो यू कांट क्लेम वर्क
वो आपका है ही नहीं, क्यों जो आपने किया है उसके ऊपर आपका हक जरूर होता है, लेकिन जो चीज आपने की नहीं, वो जो एक सजेशन है, जो एक क्वेश्चन मार्क है, वो आपका कभी था ही नहीं, तो यू कांट रियली क्लेम इट। आपकी बेटी फिल्मों में आना चाहती है या वो भी बिल्कुल नहीं। आप भी तो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन नो बट स्टिल आई थिंक वो 22 साल की हो गई है, होने वाली है अभी, तो आई थिंक शी इज मेड अप हर माइंड के नहीं आने वाली है अभी। क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप लोगों को जो आना चाहते हैं, अब जो आना चाहते हैं? पहली बात तो मैं कहूंगी कि प्लीज डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीबडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि अगर आप पूछेंगे लोगों को कि मुझे क्या करना चाहिए, तो 100 लोग खड़े होके बोलेंगे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये वो करना चाहिए, तुम्हें अपना नाक बदलो, हाथ बदलो, बालों का कलर बदलो, ये करो वो करो। और आई थिंक दिस इज माई ओपिनियन, strictly my opinion, but I think it is your individuality that makes you stand out. So I think the people that we remember the most are those who have stood out from the rest rather than blended in with the rest. And I think that is the secret of success to anybody, either on social media or in acting as well. दोनों areas में मैं कहूँगी, लेकिन like they say, प्लीज डोंट टेक माई एडवाइस। आपको भी एडवाइस दिया था ये बदलो वो बदलो? बहुत सारे लोगों ने कोशिश तो की है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई लोगों में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं। ये बताइए, आपके मदर का, फादर का, उनका एडवाइस किस तरह का रहता था, या वो उनका कुछ नज किस तरह का रहता था जब आपने करियर ये चूज कर लिया तो? My mom actually was very very clear. I think मैं 12 साल की थी, मम्मी ने मुझे बोला था बिठा के कि बेटा अभी ना तू 12 साल की हो गई है, 12 now you're entering your teens, and when you become a teenager you have to learn how to think for yourself, and whatever decisions you make in life, they are your decisions. ये responsibility तुम्हारी होगी, अगर गलत हुआ तो तुम्हारा है, अगर सही है तो तुम्हारा है, तो क्रेडिट भी तुम्हारा है और गलती भी तुम्हारी है। तो जो भी करना है जिंदगी में, 12 साल की उम्र में बैठ के सुनाया था मुझे। सो आई थिंक शी डिडंट इंटरफेयर टू मच विथ एनी ऑफ माई डिसीजंस एज फार एज मूवीज वर कंसर्न्ड, और मैंने कभी पूछा भी नहीं। जैसे आप कहते हो ना कि किसी से एडवाइस पूछी, मैंने किसी से पूछा ही नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो मैंने किया हाँ, या तो मैंने ना कर दी। So even my dad, for that matter, he was very clear. He was like, you decide for yourself कि तुम्हें क्या करना है। So कौन सी चीज आपको लगता है इस पूरे इंडस्ट्री में ओवररेटेड है? बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग भी ओवररेटेड हैं, बट मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा चीज जो मुझे लगती है ओवररेटेड है is this weird fake honesty that we have going, जहां पे लोग मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो है रो के, हंस के, जो हर एक चीज जो है दिखा देते हैं on either social media or in every which way. That I feel is a little overrated. I don't think it's necessary. Definitely not. फेम आपका मतलब क्या आपके लिए? फेम आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आई थिंक आजकल तो फेम इज अ बाय वर्ड, कोई भी फेमस हो सकता है, बट फेम फॉर मी, द पीपल दैट आई फाइंड फेमस वुड बी पीपल दैट आई रिस्पेक्ट, जिनकी तरफ मैं देख के बोल सकती हूँ कि अगर ये फेमस है, अगर मैं इनका नाम जानती हूँ, तो मैं ये भी जानती हूँ कि उनका नाम इतना फेमस क्यों हुआ है। नेम वन। Lots of people, but I'll start with our Prime Minister, Mr. Modi, for that matter. I will start with him to say that I am, he is somebody whom I really, really look up to, and I think he's famous for the exact right reasons, and the reasons are 101. 101 वजह है जिसके लिए वो फेमस है। So
and he's going to be on the stage this evening. Thank you so much, Kajol ji, for being with us. Fun and fearless, Kajol for you. Thank you so much. Thank you, my pleasure.